Assalamu alaikum students. Today is Wednesday, April 28, 2021. I'm Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. So students, in the previous lectures we were uh, uh, discussing unit number 2, that was Earth as a living planet, in which we were mainly discussing about our environment, and we are discussing environment as a whole that comes as an ecosystem. So we were discussing about different ecosystem where different kind of animals and humans live, and how they interact with the environment and how they are living in such an environment. Okay, so previously we discussed some of the habitats. So habitats मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसी places जहाँ पे लोग रहते हैं. हम फिर से definition देख लेते हैं. Habitat क्या होता है? It is a place where humans या animals live करते हैं. ठीक है, it is more than just a home, it includes the whole surrounding area. तो habitat सिर्फ हम अपने homes को नहीं कहते, ये overall जो area होता है, एक region होता है जिसके अंदर एक environment होता है जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं. So we discussed previously about desert habitat, then rainforest and forest habitats, and today we are discussing about tundra habitats. So what are tundra habitats? So a tundra is an environment that is very cold and windy. तो ये वो environment होता है जो कि ठंडा होता है और इसमें wind यानी हवा चल रही होती है. It is a treeless area, इसमें कोई दरख्त नहीं होते. It is the coldest environment. The land is covered with snow and ice most of the year. So much of the land has ground that is permanently frozen. Summers are short. So ये वो part of the world होता है, यानी अब नॉर्थ में अगर आप चले जाएं रशिया की तरफ, या ऊपर यूरोप का भी ऊपर टॉप पे अगर आप एंटार्कटिका की तरफ चले जाएं, तो आपने कंटिनेंट्स पढ़े होंगे सोशल स्टडीज़ के अंदर. तो उसमें हमने एक कंटिनेंट हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एंटार्कटिका. तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली स्नो ही रहती है क्योंकि वो ऊपर नॉर्थ में आता है. तो जितना जितना आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, सॉरी फॉल होता है, यानी कोल्ड इन्वायरमेंट आपके पास आता है. सो टुंड्रा हैबिटेट जो आपके पास होता है ये अपर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप अर्थ को अगर देखें तो उसका जो नॉर्थ एरिया बनता है दैट कम्स एज टुंड्रा हैबिटेट, जहाँ पे मोस्टली क्या लैंड कवर्ड विद स्नो और आइस के साथ. और मच ऑफ द लैंड हैज़ ग्राउंड दैट इज़ परमानेंटली फ्रोजन. तो वहाँ पे क्या होता है, लेक्स आर फ्रोजन, इवन सीज आर फ्रोजन. ओके, सो मच ऑफ द लैंड हैज़ ग्राउंड दैट इज परमानेंटली फ्रोजन. द समर्स आर शॉर्ट, वहाँ पे समर्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं. द नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर. सो फ्रेश वाटर हैबिटेट यानी फ्रेश हैबिटेट कम इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स एंड वेटलैंड्स. सो फ्रेश वाटर हैबिटेट का मतलब क्या है कि लेक्स नदियाँ, रिवर्स दरिया, स्प्रिंग्स चश्मे, एंड वेटलैंड्स और ये गीली ज़मीनें. सो यू माइट फाइंड फ्रॉग्स, डक्स, बीवर्स, टर्टल्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड मैनी काइंड्स ऑफ फिश इन अ फ्रेश वाटर हैबिटेट. तो फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर फिशेस और डक्स, फ्रॉग्स, इस तरह के जो हैं आपके पास टर्टल्स वगैरह एनिमल्स जो क्या हैं वहाँ पे लिव करते हैं. सो दैट एनवायरनमेंट इज purely belong to these kind of animals. Okay, next is salt water habitats. So what is salt water habitats? ये वो है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सी का जो environment है, ठीक है, within sea water का environment, salt water. So sharks, starfish, whales, dolphins, lobster and coral are some of the animals found in the ocean. These animals evolved to adopt to their aquatic environment and cope with adverse changes in temperature. So ये वो animals होते हैं जो according to their environment अपनी body को adjust करते हैं और अगर temperature की कुछ changes हों तो उसको भी they accordingly meet with that. ठीक है. So now we are discussing about various features of animals and plants to live in a particular habitat. So एक particular habitat में रहने के लिए, एक environment में रहने के लिए obviously वहाँ पे plants भी होते हैं और animals भी होते हैं. in general अगर हम for example desert की बात करें या forest habitat की बात करें तो वहाँ पे humans भी रह रहे होते हैं, animals भी होते हैं, plants भी होते हैं. So they all come up to form a habitat. So how they are interacting and what are the various features of the plants and animals. तो वहाँ पे जो plants और animals different habitats के अंदर रहते हैं तो उनके क्या क्या features होते हैं और वो कैसे adopt करते हैं अपने आप को.
So most plants and animals are specially adapted to survive in a particular habitat. तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सिर्फ वही एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर बाकियों ने सर्वाइव करना है तो वो अपने आप को अडॉप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस. लाइक कि जब विंटर्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपर्स पहन लेते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? सो दैट वी कैन कोप अप विद द टेम्परेचर चेंजेस. ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ हम कोप अप कर सकें, उसको डील कर सकें. सो दे हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू सूट द डिमांड ऑफ देयर एनवायरनमेंट. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि एडेप्टेशन, के हम अपने आप को, अपना निज़ाम ज़िंदगी को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट चेंज करें, so that we may take carry on our activities. Otherwise we have to sit back in our homes when it is winter outside. Okay, so we have special characteristic that is known as adaptation. So all birds have similar characteristics. Many water birds have features that are different from those birds live on land. So जो land birds, land में रहने वाले birds होते हैं और कुछ water birds होते हैं. ठीक है, जैसे pigeon है या इस तरह के. ठीक है, तो लैंड बर्ड्स और जो आपके पास वाटर बर्ड्स हैं, इन दोनों के आपस में फीचर्स डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट इन्वायरमेंट आउट देयर. सो एक्वेटिक एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू मूव मोर इजीली इन द वाटर. तो उनकी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइंड होती है, ऐसी स्मूथ हुई होती है, सो दैट कि वो पानी के अंदर इजीली मैनूवर कर सकें, मूव कर सकें. डेजर्ट एनिमल्स हैव अडैप्टेड टू लिव इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट. तो डेजर्ट एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू द हॉट एनवायरनमेंट अपने आप को सर्वाइव करना होता है. एक चीज़ याद रखें कि जो अर्थ अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है. तो यही वजह है कि अगर आपने देखा हो कि अगर किसी स्प्रिंग के ऊपर जाना हुआ हो, यानी चश्मे के ऊपर आप गए हों, तो वहाँ पे क्या होता है, विंटर्स के अंदर पानी चश्मे का गर्म होता है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से आ रहा होता है, और अगर समर्स में जाएँ तो पानी कोल्ड होता है. सो इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि ये जो पानी है, ये जो पानी का चश्मा है, ये वाटर जो है वो प्योर वाटर है. ठीक है, नेचुरल वाटर है. ठीक, और दूसरी चीज़ क्या पता चलती है कि अर्थ का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है. ओके, सो इसी तरह डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को डे टाइम के अंदर वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं ताकि टेम्परेचर के इफेक्ट से बच सकें और फिर वो रात को बाहर निकलते हैं. So desert animals have adapted to live in the hot climate. Animals who live in ice have adapted to be more suited to cold temperature. So इसी तरह जो लोग आइस के अंदर रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल फ्रोजन आइस होती है. ठीक है, पानी जो है वो फ्रोजन हो जाता है, तो एनिमल्स जो लिविंग वाटर के अंदर होते हैं वो फिर ऊपर नहीं आते, वो अंडर बीनीथ द वाटर. ठीक है, वो सिंक कर जाते हैं, नीचे डूब जाते हैं. लाइक फ्रॉग जो होती है वो अपने आप को विंटर्स में हाइड कर लेती है, वो नीचे चली जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है. ठीक है, फिर वो जब समर आती है तो फिर वो बाहर निकलती है. Even plants have adapted to their habitats. Animals and plants help each other. Plants and अच्छा, so क्या होता है, जब आपके पास ऑटम आता है तो प्लांट्स जो हैं वो क्या कर देते हैं, अपने पत्ते उनके गिर जाते हैं. ठीक है, तो उनकी या फिर उनके पास बहुत लिमिटेड वो रह जाते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, फीड अप कर सकें अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर. सो एनिमल्स एंड प्लांट्स हेल्प ईच अदर. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर for wide variety of things. So animals और plants के अंदर special features होते हैं adaptation के, और we help each other to keep the balance of the nature. हम अर्थ का जो ये हमारा ecological balance है, यानी environmental या ecosystem का जो balance है, इसको maintain रखने के लिए we humans and animals and plants interact with each other. So how these interactions are possible? So like you can see that what are the features different animals have. So long legs are good for wading. जैसे आपको यहाँ पे एक परिंदा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कीचड़ है, तो अगर लॉन्ग ना होती तो ये इधर ही स्ट्रक हो जाता. सो विंग्स एक्ट एज अ फ्लिपर. तो ये जैसे आपके सामने एक डक का बच्चा है पानी के अंदर, तो फ्लिपर किस लिए यूज़ होता है, तैरने के लिए. तो उसको पानी के अंदर मूव करने के लिए विंग्स प्रॉपर उसके पाँव में बने होते हैं. देन इसी तरह आप डिफरेंट एनिमल्स हैं, आपने इनको स्टडी करना है, इनकी क्या क्या फीचर्स हैं. So that is your task. Now moving on. So some animals are camouflaged to blend in with their surroundings. This keeps them safe as it is more difficult for other animals to see them and to or catch them for food.
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनकी शेप से उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कि बाकी जो उनके पास बाकी जो एनिमल्स हैं या डिफरेंट अदर एनिमल्स हैं वो उनको हंट ना कर सकें, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक फूड चेन या फूड साइकिल होती है कि क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड देयर आर सम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स ओनली, फिर हम उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक। और जब फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी सिर्फ वो मीट खाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर, इस तरह ओमनिवोर। तो इस चीज़ को हम अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट आर हर्बीवोर्स? हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स ओनली, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। हर्ब कहते हैं किसको? जड़ी बूटी को, यानी प्लांट्स को कहा जाता है। सो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाएं हम उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। For example, deer, cow, goat, sheep, buffalo, bull, camel. So these all are the examples of herbivores. Then carnivores. Carnivores are those animals that eat other animals for their food. So just जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, like lion, eagle, tiger, leopard, dog, cat, etc. Next is omnivores. Omnivores क्या होते हैं? Some animals like us eat both plants and animals. So we use plants as a vegetable, as a fruit, and we also eat animals, uh, for example, chicken or beef or mutton. So we use animals for our food. So ऐसे animals that use both eat both plants and animals are called omnivores, like humans, bear, pandas, etc. So they all are omnivores. So moving on to our next, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। यहाँ पे भी जो आपने ऊपर देखे हैं ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स, तो इनमें आपने क्या देखा है, ये सारे क्या हैं? कंज्यूमर हैं, कि जो दूसरों की चीज़ को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, दूसरे की फूड से अपना पेट भरते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और एक वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं दैट मेक देयर ओन फूड। तो कौन ओन फूड बनाता है? प्लांट्स। प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं? दे मेक देयर ओन फूड। So plants are living organisms. They need nourishment to survive. Plants do not eat other plants or animals. Plants are called producers because they produce their own food using sunlight. और फिर उनको कौन खाता है? Consumers. So consumers में आपके पास herbivores, carnivores and omnivores, ये सारे आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। Primary consumer आपके पास क्या आएगा? Herbivore, उनको खाते हैं। Secondary consumer यानी carnivore, और उनको कौन खाता है? आपके पास omnivores that are ternary consumers, ठीक है। So we are left with the topic of food chain only, so that we will discuss in our next class. Hopefully you guys have learned it well. Your homework will be shared on the portal. That's all from today. Thank you for joining. Allah Hafiz.